Welcome back to the channel, guys. Today is 6th of February, I guess. Yes, it's 6th of February. And though today I'm not traveling, I'm going to some nearby places where I can find someone who can make my Himalayan seat a bit soft. My seat has been very stiff since long. It's been almost a year I have bought this bike, and I have traveled extensively, almost 16,000 kilometers. But with time my seat went a bit stiff and it's hurting now. So I'm in search of someone who can make my seat a bit soft for me for traveling. Though today is not the travel vlog, I'm not traveling to anywhere. I'm in search of someone, any seat maker or someone who works on car seat or bike seat. I'm traveling to Durgapur right now, and I know a place in Durgapur, such as its name is Tank Road, I guess, where I can find someone who can help me out. I hope I don't get a railway crossing jam. It's still cold. It's almost 26 degrees, but I can feel that chilly weather right now. It's sunny. And thank you for the response on my first video. Though I made some mistakes in my first video, that camera angle and all. This is a different camera angle that I'm trying out. I don't know much about the camera angles right now. There is a flyover construction ahead, so there will be a jam. I hope so. And if it is not, that's well and fine. बहुत दिन से चल रहा है ये फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. और बारिश अगर हो गया तो इट्स सी. तो बारिश एक दिन पहले हुआ है. आई होप the slush has been dried. इसी रोड के लिए तो हिमालयन बना है. I can glide through the potholes. See, this flyover is on construction since long. अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ ये. पता नहीं कब तक ख़त्म होगा. शायद जब तक ख़त्म होगा तब तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगा. There will get this jam. नहीं खुला है. Yes. आज बाइक बहुत ही लाइट है क्योंकि आई एम नॉट कैरिंग माई पैनियर्स, जस्ट द टॉप बॉक्स जो ऑल टाइम मेरे बाइक में फिक्स्ड ही रहता है. इट्स नॉट ए डिटैचेबल टॉप बॉक्स, इट्स अ फिक्स टॉप बॉक्स. एंड वो भी ज़्यादा भारी नहीं है, जस्ट खाली है. आई एम जस्ट कैरिंग माई टैंक बैग. इसमें कुछ वॉलेट्स एंड कुछ छोटा सामान है बस. आई एम ट्रेवलिंग वेरी लाइट, सो इट ईजियर टू ग्लाइड थ्रू द ट्रैफिक ऑल्सो. डोंट गेट सरप्राइज्ड इफ़ यू सी पीपल नॉट वेयरिंग हेलमेट. ये बहुत ही कॉमन है यहाँ पे लोकल से. तो हेलमेट का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे. कभी कभी पहन लेते लोग. अब यहाँ से आई विल टेक द हाईवे. आई विल एग्जिट द सर्विस रोड एंड दिस रोड स्ट्रेट गोज टू कोलकाता. बट आई एम नॉट गोइंग टू कोलकाता राइट नाउ. आई एम गोइंग टू दुर्गापुर. अब क्लियर रोड है. आई कैन रेव दिस इंजन अप. वैसे भी आई एम रनिंग वेरी लेट टुडे ऑल्सो. इफ यू रिमेंबर माई लास्ट ब्लॉग, आई एंडेड ओवर इन दिस हाईवे ओनली बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ बैटरी इन माई GoPro and I was in a rush to reach my destination for that day and I had no time, so I paid a farewell over here only on my last video.
I just said goodbye to you guys in this highway only. Like this was the exact place where I said goodbye. हम क्या ही कर सकते हैं, GoPro का बैटरी बैकअप उतना दे नहीं रहा है, तो in that scenario I think I need to keep 2 batteries, though I don't have any spare battery of GoPro. In this highway you can almost keep a speed of 100, 120 if your bike permits. Like Himalayan goes to max 120, not more than that. I don't rev much, I don't ever go beyond 120, but sometimes I do. I hope I will get to see many bikers today, because today is Sunday and many people go for breakfast ride and all. They come back by this time. I'm a late riser. I am not a person who goes on breakfast ride much. ये देखो रास्ता क्रॉस कर रहा है. This is the problem in this highway. People cross from anywhere and any time. As I was saying, I am a late riser. I don't wake up in the morning. Like 6 बजे उठना मेरे लिए is kind of impossible thing. So I'm a late riser. मैं जब भी निकलता हूँ ऑलमोस्ट शाम को निकलता हूँ या रात को निकलता हूँ या दोपहर को निकलता हूँ. I don't prefer going out in the morning. For me, night time is the best time to travel, I feel so. इसलिए मैंने वैसे ही अपने बाइक को मॉडिफाई करके लाइट्स डाल रखे हैं कि मुझे रात को कभी दिक्कत ना हो. और यहाँ पे ट्रक्स और डंपर्स है भरे पड़े हैं. हाईवे है तो ट्रक्स आर वेरी कॉमन. दिस KTM मिरर्स आर बूम, एक्चुअली गुड. जो हिमालयन के साथ जो मिरर आता है, दैट इज द सिटीएस्ट थिंग आई हैव एवर यूज्ड. लाइक आई डोंट लाइक इट एट ऑल. वो वाइब्रेशन में घूम जाते हैं उल्टे साइड पे. दिस मिरर इज़ वाइडर. If any of the Himalayan owners are watching this video, you can directly relate it. Believe me, go for the KTM mirrors or some wider mirrors, because इसमें vibration तो होते नहीं है. Like I can at least see the traffic behind. जो भी मेरे पीछे I can see it clearly. In Himalayan mirrors, it's full of vibrating thing, and वो भारी भी है बहुत, तो शायद इसके लिए वो कांपते रहते हैं. And the object in the mirror is not that clear. I prefer the KTM mirror. Some of the people put Avengers mirror also, because that is more what I feel so. But मुझे Avengers का mirror का वो डिज़ाइन पसंद नहीं है एकदम. So I went for the KTM mirrors. इसमें इस बाइक पे मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं for my need and my purpose, जो मुझे ठीक लगे. मैंने ओवरडन तो नहीं किया है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस विंडस्क्रीन, दिस विंडशील्ड इज़ ए बिगर विंडशील्ड दैन द नॉर्मल वन, बिकॉज मैं नॉर्मली हाईवे में ट्रैवल करता रहता हूँ एंड आई नीड टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द विंड ब्लास्ट. तो इसमें विंड ब्लास्ट आते ही नहीं है. इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू दिस कैमरा, ये विंडस्क्रीन की वजह से ही द वॉइस इज सो क्लियर, आई फील सो. नहीं तो वो घर घर आवाज़ आते रहते हैं. मैंने चेक तो नहीं किया है कि हाउ इट्स रिकॉर्डिंग, वो तो बाद में पता चलेगा. क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, आई वॉज रिकॉर्डिंग एंड वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं. लाइक द वॉइस डिडंट कम. पता नहीं क्या दिक्कत है GoPro के साथ. आई थिंक आई शुड स्टॉप एनीवेयर एंड चेक वेदर द वॉइस इज़ कमिंग और नॉट. क्योंकि वॉइस नहीं आया तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, एंड आई डोंट लाइक गिविंग द वॉइस ओवर. नहीं तो फिर वो रियल फील चला जाता है वॉइस ओवर पे. लाइक यू विल बी एक्सप्लेनिंग अ स्टोरी इन इट एंड वो वीडियो अलग चलता रहता है. मेनी ऑफ द पीपल सजेस्टेड मी दैट आई शुड रिमूव दिस मोबाइल माउंट so the व्यू will be more clear. बट इसको हटाऊंगा तो मैं GPS कहाँ से देखूंगा. लाइक आई डोंट नीड अ GPS राइट नाउ, बट अगर मैं बाहर जाता हूँ तो आई विल ऑलवेज बी नीड अ GPS टू ट्रैवल. तो इसको रखूँ कहाँ. एंड वन थिंग अबाउट दिस मोबाइल माउंट इज़ गुड दैट if I put it just clamps the mobile thing, like it holds the mobile thing very firmly. एंड जो बोबो में आपको नट से करना पड़ता है, इसमें एक स्प्रिंग है जो इट डायरेक्टली कैचेस द मोबाइल वन. The mechanism is far better than Bobo, I feel so. But Bobo is a good mobile mount. It's more sturdy. But मैंने लगाने के बाद ज़्यादा तो इसमें मोबाइल लगाया नहीं for the GPS thing.
but in long run I will need a GPS mount, a nice GPS mount, so I can mount my mobile. And there's one more issue with the GPS mount that कोई भी अच्छा मोबाइल पे आप GPS माउंट में लगा के चले तो प्रॉब्लम इज़ दैट इफ योर कैमरा क्वालिटी डिग्रेज, आई डोंट नो हाउ बट द फोकस वो होता नहीं है, द फोकस बिगड़ जाता है उस कैमरे का। शायद वो वाइब्रेशन की वजह से कुछ सेंसर में कुछ दिक्कत आ जाता होगा कैमरे का, बट द कैमरा ख़राब हो जाता है इन दैट सिनेरियो। सो आई डोंट प्रेफर पुटिंग the camera on that GPS mount much. I put it in my tank bag. I don't know what to do, but I prefer not using much of GPS on this mobile mount or any of the mobile mount, क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन का जो कैमरा है उसका कैमरा इसी वजह से ख़राब हुआ था। I think this is a new Java. Yeah, this is a new Java. जोर से हवा चल रहा है एंड आई एम गेटिंग द विंड ब्लास्ट। एंड एज यूजुअल आई एम नॉट वेयरिंग माई ग्लव्स बिकॉज मुझे ग्लव्स पहनना पसंद ही नहीं है। अब इतना पास में जाऊंगा तो ग्लव्स क्या पहनूँ उसमें, और मैं 200-300 किलोमीटर के राइड में कभी कभी ग्लव्स छोड़ देता हूँ। ये इट्स कीप ऑन इरिटेटिंग माई हैंड्स। वो कैसे लगता है, हाथ को क्लमजी लगता है मुझे। आई थिंक आई नीड टू गो गेट बेटर ग्लव्स दैन द सोइको वंस, सोइको साइको पता नहीं जो भी ब्रांड है उसका। आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट। वो है मेरे पास। अब ठंड के टाइम में व्हेन आई विल बी रिटर्निंग लाइक मेरे वापस आते थे, आई फील इवनिंग हो जाएगा दैट टाइम, तो मुझे ग्लव्स पहनना ही पड़ेगा बिकॉज तब तो ठंड होगा। एंड फॉर दैट टाइम आई हैव ए डिकैथलॉन ग्लव्स, दैट विंटर ग्लव्स फ्रॉम डिकैथलॉन। इट्स अ बेटर वन, वो सॉफ्ट भी है। अब मुझे हाईवे छोड़ के सर्विस लेन फिर से लेना पड़ेगा, सो यू कैन एंटर इनटू द मार्केट एरिया जहाँ पे बाइक के कुछ काम होते हैं। ये सर्विस लेन में लाइन से बाइक के शोरूम से, जैसे KTM, हस्कवर्ना, टोयोटा, लाइन से एकदम, बजाज सब एक साथ हैं यहाँ पे। फोर्ड तो बंद ही हो गया, भाग गया इंडिया से हैं। जिधर सर्विस लेन आगे से अगर लेफ़्ट लेता हूँ तो बेनाचिती मार्केट आ जाता है। तो आई नीड टू गो इनसाइड द बेनाचिती मार्केट एंड उधर ही टैंक रोड है, ट्रंक रोड या टैंक रोड जो भी बोलते हैं यहाँ पे। पूरा मार्केट एरिया है। अभी दोपहर का टाइम है तो इट्स नॉट दैट क्राउडेड, नहीं तो ये बहुत क्राउडेड रहता है। अच्छा, यामा का शोरूम यहाँ पे है। एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू गेट ए मैक्सी स्कूटर। अब स्कूटर कैसा होगा पता नहीं, लाइक इंडिया में तो मैक्सी स्कूटर मिलता नहीं है, हर जगह तो हिमालयन लेके नहीं जा सकते ना। सो आई एम प्लानिंग फॉर ए मैक्सी स्कूटर। अब पता नहीं वो प्लान एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, बिकॉज वैसा कोई स्कूटर है नहीं यहाँ पे इंडिया में, लाइक दैट बिग स्कूटर एंड ऑल। हाँ, मैक्सिमम मिल सकता है तो एरोक्स मिल सकता है। अब वो पता नहीं, वो नया बाइक एकदम क्या उसका रिव्यू है, कुछ भी मुझे पता नहीं है। टैंक रोड आई गेस, यहाँ से राइट लेने से वो बाइक मार्केट शुरू होता है। इधर क्यों गाड़ी लगा रखा है इसने, बंद है क्या रास्ता? हाँ, यही बड़ा रूट है। आई होप द मार्केट इज़ ओपन, मेरा काम बन जाए बस। मे बी नेक्स्ट वीक में कहीं घूमने जाऊं और मुझे दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सीट
जो सीट कवर है बहुत अच्छा सीट कवर है, ये मैंने कोलकाता से लिया था, वेलिंगटन मार्केट से। इट्स अ निंजा सीट कवर अकॉर्डिंग टू देम, बट यहाँ पे वो मुझे उस क्वालिटी का सीट कवर तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्पॉन्ज मुझे मिल जाएगा। तो वो स्पॉन्ज के लिए मेरा सीट का हाइट थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ ये खाली है। चलो बात करके देखते हैं क्या बोल रहा है, कब तक कर सकता है ये। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई बाइक राइट नाउ। सीट खुल चुके हैं, उधर काम हो रहा है, और ये सीट की जो हालत है वो ये है। ये अंकल सीट खोल रहे हैं। ये पूरा मार्केट है जहाँ पे काम हो रहा है। ये 2 इंच फोम है। काफ़ी सॉफ्ट है। दिस इज़ माई पिलियन सीट। इसमें ऑलमोस्ट कितना कुछ इंच के स्पॉन्ज लगे हुए पहले से, बट ये कोई काम का नहीं है। इस पर डालने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेन ज़रूरत उसमें है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बाइक चलाता हूँ, पीछे कोई बैठता है नहीं है। द प्रॉब्लम विद द हिमालयन इज़ कि वी गेट हर्ट ओवर दिस थिंग। यहाँ पे मुझे हर्ट हो रहा है, दिस वन आई एम गेटिंग हर्ट ओवर दिस। इसमें मुझे चुभ रहा है चीज़ें, तो उधर भी स्पॉन्ज डालना है। दिस द टॉप बॉक्स आना है कि अपना हेलमेट हो गया। बड़ी दुकान है जहाँ बैठ के काम हो रहा है। इसको और चौड़ा कर दिया गया है। এখানটা হয়তো তোমার হালকা চাঁচতে হতে পারে, হালকা এই জায়গাটা। आई वॉज गेटिंग हर्ट ऑन दिस प्लेस एक्चुअली, तो इसको सही करना पड़ेगा अब। ये जो पीछे लगा ये मेरा बैक रेस्ट का काम करेगा, काइंड ऑफ बैक रेस्ट। ये बैक को सपोर्ट देगा। आई रियली नीड सम बैक सपोर्ट, उसी के लिए है ये। और ये देसी स्टाइल में चल रहा है ट्रिमिंग प्रोसेस। अभी फ़िलहाल ऐसे लग रहा है, ये इसको हल्का और ट्रिम करना पड़ेगा यहाँ से, सो दैट ये फिट हो जाए। ये करने से तभी जाके वो पीछे का पार्ट अप हो जाएगा एंड आई विल गेट द गुड सपोर्ट फ्रॉम इट। फिट तो हो जा रहा है, बहुत मशक्कत करने के बाद फिट हो रहा है। इट लुक लाइक दिस। वेल माय फर्स्ट सीट हैज़ बीन डन, द पैसेंजर सीट हैज़ बीन डन। अब पिलियन सीट का कवर बन रहा है। आई चोज दिस कवर। ये तो रफ भी है और ब्रेक मारने से मैं आगे भी नहीं जाऊँगा, सो आई चोज दिस वन। अब दूसरा बन रहा है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ लुकिंग, यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा।
ये काफ़ी सॉफ्ट है। Well, I'm done with my seat upgradation. This is soft. This is quite soft. मैंने इस पे ज़्यादा स्पॉन्ज डाला है, इस पे ज़्यादा नहीं डाला। इसमें जो था वही छोड़ दिया, बिकॉज मेरा पिलियन उतना बैठता है नहीं। बट आई हैव अपग्रेडेड दिस थिंग। देखिए बहुत सॉफ्ट है, बहुत अंदर जा रहा है। I'm done with my seat का upgradation. Now I'm heading towards my home. Not actually home. उससे पहले शायद मैं अपने एक दोस्त के घर जाऊँ, वहाँ थोड़ा काम है मुझे, and then I will head back to home. अभी थोड़ा शाम होने वाला है तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया है, बट इट्स फाइन। एटलीस्ट चलने लायक तो है, नहीं तो ये जो लेन है ये भर जाता है ट्रैफिक से, और फिर कोई भी कहीं से भी घुस जाते हैं। I'm out of that jam right now and this is a service lane. This seat is quite comfortable as of now, क्योंकि अभी नया है। अब पता नहीं सीट कितना बैठ जाएगा यूज़ करने के बाद, अब कब तक चलेगा वो भी मुझे पता नहीं। लेट्स सी। मैंने 2 इंच फोम डलवा दिया है फ़िलहाल के लिए। सब मेरा सीटिंग पोस्चर थोड़ा इंक्रीज तो हो गया है एंड इट्स क्वाइट कंफर्टेबल राइट नाउ। दैट ब्यूटीफुल सनसेट। As I said, this is not a travel vlog. This is a upgradation vlog of my bike. I really needed a seat that is a soft cushion. मैंने ट्राई किया कुछ रिकॉर्ड करने के लिए in that market, कैसे वो अपग्रेड कर रहे थे, how the person was setting up the seat and all. It may help someone who also wants to upgrade their Himalayan seat or any seat, like सिर्फ हिमालयन के लिए नहीं, तो with time कोई भी सीट स्टिफ हो जाते हैं। तो इन दैट सिनेरियो आपके बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टू अवॉइड दैट, एंड सब बाइकर्स के बैक पेन तो होते रहते हैं। लाइक प्रीवियसली आई यूज्ड टू ओन RS 200, उसमें भी मैंने यही सेम काम करवाया था, नॉट फ्रॉम सेम प्लेस। तो उसमें भी मैंने फोम डलवा के उसको ऊंचा कर लिया था। तो इन दैट सिनेरियो इट यूज्ड टू बी वेरी मच कंफर्टेबल वाइल राइडिंग, तो इट वाज अ स्पोर्ट्स बाइक। तो स्पोर्ट्स बाइक में जब पोस्चर बहुत गलत होता है बैठने का, तो उसमें नॉर्मली बैक पेन आ ही जाते हैं, लेकिन तब भी उसमें मेरा उतना बैक पेन नहीं आया था। और इन दिस हिमालयन इसका सीट हाइट बहुत कम हो गया था, लाइक जो स्टॉक सीट है वो बैठ गया था नीचे एकदम। तो उस पर मैंने 2 इंच का फोम और डलवा दिया है, उसके बाद नया सीट कवर डलवा दिया है। अब देखते हैं ये कब तक काम करता है ना, हाउ इट परफॉर्म्स ऑन हाईवे ऑल्सो, और पोटोज़ में कितना झटके देता है ये। So this was my second vlog, I guess. Yes, this is the second vlog in my channel. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. And I hope to record more videos in near future. I hope this video will be helpful to all the Himalayan owners out there. Not only Himalayan owners, any of the bike owners, that those who want to upgrade their seat. Well, if you want to know from where I upgraded my seat, it's in Durgapur area. If someone is watching from Durgapur, you can go to that Tank Road market, and there are ample of options where you can upgrade your seat. Asking them, just give them advice like what kind of seat you want, and they can fix your seat according to your posture or how you seat according to your bike also. It's not for Himalayan only, but this vlog is specifically for Himalayan owners, because I have done this experiment or whatever you want to say for Himalayan only. So goodbye guys, see you soon, and thank you for watching my videos.